Welcome students to our fourth session of our chapter number 6, that is life processes. Students, in this chapter we are going to study about transportation in human beings as well as transportation in plants. We are going to study about functions of blood, then structure of human heart, then circulation of blood in human heart, then we will see various types of blood vessels, then we will see the functions of lymph, then we are going to study about transportation of water, food and other substances in the plants. Okay students, let's start our topic with the various functions of blood. Students, in human beings, the main transportation of various materials is done by one of the liquid connective tissue, that is blood. Blood performs the functions to transport food, that is nutrients, to transport various respiratory gases like oxygen and carbon dioxide, to transport various salts, to transport various waste materials. Okay, these are the various functions of what? Blood. So blood is an important liquid connective tissue in our body, and this blood is pumped by whom? It's pumped by the heart. So let us discuss about the structure of human heart. As you can see on the screen, the schematic sectional view of human heart. Students, human heart is a muscular organ. It is made up of what? Cardiac muscles. Human heart किससे बना हुआ है? Cardiac muscles से. Okay, its size is as big as our fist. ह्यूमन हार्ट का साइज ये माना जाता है कि हमारी बंद मुट्ठी का जो साइज है उतना ही साइज ह्यूमन हार्ट का होता है. ओके, नाउ सिंस बोथ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू द ह्यूमन हार्ट, इट हैज़ वेरियस चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट to prevent the oxygenated and the deoxygenated blood by mixing them. Okay, here you must understand that what do you mean by oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated blood means the blood which contains oxygen, that is pure blood we can say. Okay, which contains oxygen. And deoxygenated blood means the blood which contains carbon dioxide. उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ओके, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स. द अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. ओके स्टूडेंट्स, ऊपर के चैम्बर्स को हम एट्रियम्स बोलते हैं, नीचे के चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स के बोलते हैं. ओके, now right atrium contains what? Impure blood, and right ventricle also contains impure blood. Left atrium में क्या होता है? Pure blood, और left ventricle में भी क्या होता है? Pure blood. और both the atrium and ventricle are connected through what? Valves. उनके बीच में valves है, and these valves are such that they prevent the backflow of the blood. जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आते हैं तो ये वॉल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं बाद में, और ये वॉल्व जो है पीछे से ब्लड वापस से ऊपर जाने नहीं देते हैं. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वॉल्व्स. दीज वॉल्व्स आर व्हाट? ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइकस्पिड, TRICUSPID, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व. ओके स्टूडेंट्स, सो ह्यूमन हार्ट में क्या है? 4 चैम्बर्स है. अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, और उनके बीच में क्या है? वॉल्व्स है. एंड द क्लियर dividing between the left and the right side is known as what? Septum. It is a dividing wall between the left side and the right side. Okay, that is called septum. Now let us discuss regarding the blood circulation in the heart. Students, you must remember that all the impure blood, that is deoxygenated blood, is brought by what? Superior and inferior vena cava. सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा जो है सारा इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं, एंड दे पोर इट इनटू व्हाट? राइट एट्रियम. ओके, व्हेन द राइट एट्रियम रिलैक्सेस, all the impure blood is brought by the superior and inferior vena cava and poured it into the right atrium. At the same time, when the left atrium relaxes, all the pure blood is brought by the
पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है सारे प्योर ब्लड ले जाते हैं और उसको लेफ्ट एट्रियम में क्या करते हैं, पोर कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कौन लेके आते हैं पल्मोनरी वेन्स, और कहाँ से लेके आते हैं प्योर ब्लड, लंग्स में से, क्योंकि लंग्स में ही क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो सारा प्योर ब्लड लंग्स में से आता है और पल्मोनरी वेन्स जो इसको कहाँ पे डाल देते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। सो नाउ बोथ द एट्रिया आर फिल्ड विथ ब्लड, राइट एट्रियम विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ व्हेन बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, द वाल्व्स ओपन एंड द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। Okay, now we all know that these valves are such that they prevent the backflow of the blood. So now when the ventricles contract होते हैं, the impure blood, that is deoxygenated blood, is taken by whom, by the pulmonary arteries to the lungs for what, for getting oxygen. ये जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, ओके, वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वो कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन गेन करता है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कंटेन्स व्हाट, प्योर ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट गोज थ्रू व्हाट, थ्रू द मेन आर्टरी दैट इज एओर्टा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा जो है इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं राइट एट्रियम में, और पल्मोनरी वेन्स जो है प्योर ब्लड लेके आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड किस में जाता है, वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इम्प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाते हैं लंग्स में, उसको प्यूरिफाई करने के लिए। एट द सेम टाइम जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड कौन, एओर्टा लेके जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन। नाउ इन आवर बॉडी ड्यूरिंग वन साइकिल what happens, the blood flows twice in the heart। एक ही साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट में फ्लो कर रहा है, सो इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन मेजर वर्टिब्रेट्स, जो बड़े बड़े वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें मोस्टली डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव ऑल अंडरस्टूड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? These are the tubular structures which carry blood. So students, there are 3 types of blood vessels. There are 3 types of blood vessels: arteries, veins and blood capillaries. Once again, which are the 3 types of blood vessels? Arteries, veins and blood capillaries. You must have heard these names also. Okay, now what are arteries? Arteries are the blood vessels which carry pure blood. They carry the pure blood from the heart to the various parts of the body. The walls of the artery are thick and elastic. क्यों इनके walls thick और elastic होने चाहिए? Because they carry the blood which is pumped by the heart. So blood is under high pressure. So इसके walls एकदम thick और elastic होते हैं. Once again, arteries carry pure blood from where? From heart to the various parts of the body. Now veins collect the blood from the different parts of the body and bring back to the heart. वेन्स के वॉल कैसे होते हैं? थिन होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड कोई प्रेशर में नहीं होता है। दे कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, सो दीज आर वेन्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय ब्लड कैपिलरीज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आर्टरीज जो है ब्लड कैरी करते हैं क्या, प्योर ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑन रीचिंग टू वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन्स, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो है और आगे छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंड एट लास्ट दे बिकम स्मॉलेस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड कैपिलरी। ओके, आर्टरीज ही आगे डिवाइड होकर क्या बन जाते हैं, कैपिलरीज। और इन्हीं कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ब्लड जो भी मटेरियल देना होता है उस सेल को वो मटेरियल्स दे देते हैं। ओके, नाउ दीज ब्लड कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म व्हाट, वेन्स। आर्टरीज ही सारे डिवाइड होके बनाते हैं ब्लड कैपिलरीज, और यही ब्लड कैपिलरीज आगे जाके जुड़ के क्या बनाते हैं, वेन्स। एंड फ्रॉम देयर द वेन्स कैरी द ब्लड टू द फ्रॉम द all the parts of the body to the heart. So students, once again, which are the 3 types of blood vessels? Arteries, veins and blood capillaries. Okay students, now students, let us discuss about another type of fluid present in our body, that is lymph. Okay, we are going to discuss about another type of fluid which is
involved in transportation in our body which is called lymph. तो एक्चुअली लिम्फ होता क्या है, LYMPH, ये लिम्फ होता क्या है? तो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड इट. व्हेन द ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, हम जानते हैं ब्लड कैपिलरीज कितने पतले होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. ओके, तो जब कभी ब्लड उसमें से फ्लो होता है ना, तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एक्सेट्रा, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स जो है उस कैपिलरीज के वॉल्स में से एस्केप हो जाते हैं. एंड दे एस्केप इनटू व्हाट, इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यूज. ओके, ये ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, ब्लड कैपिलरीज में से थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है उनके वॉल्स में से निकल कर टिश्यूज़ के आजू बाजू के स्पेस में जमा हो जाते हैं. और यही सब जो मिलके क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है. तो lymph is a colorless liquid. It is a colorless liquid and it contains less protein compared to blood. अब ये lymph एक्चुअली क्या है, लिक्विड ही है. तो दिस ऑल lymph is collected by what? It drains into lymphatic capillaries. ये सब जो है lymphatic capillaries उसको कलेक्ट करते हैं और lymphatic capillaries इसको किस में डाल देते हैं, lymphatic vessels में. Once again the lymph drains into lymphatic capillaries and from there it is drained into what, lymphatic vessels that finally opens into what, larger veins. तो याद रखने का कि ब्लड जो अपने वेन्स में जा रहा था, वापस से ये सब लिम्फ, उसमें से थोड़ा बहुत लिम्फ के नाम पे बाहर निकला, फिर से सबको जुड़ के वहीं पे कहाँ पहुँच गया, वेन में ही पहुँच गया. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन लिम्फ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स में से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स जो निकल जाते हैं और टिश्यू के आजू बाजू जो है ये लिक्विड बना देते हैं, फ्लूइड बना देते हैं, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं. जो अलग सा क्या करते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज उनको कलेक्ट करके लार्जर वेन्स तक पहुँचा देते हैं. So, what is the function of this lymph? This lymph actually carries digested and absorbed fat from the intestine. हमारे intestine में से digested और absorbed fat को carry करते हैं and drains what? Excess fluid from the extracellular space back into the blood. ये जो थोड़ा बहुत fluid जो यहाँ वहाँ भटक जाते हैं ना, उनको वापस से कहाँ पे veins में blood के अंदर लेके आ जाते हैं. And one more thing, it also removes the bacteria from the tissues. So they fight against the diseases for our body. Okay students, it's very important to understand one, this is the another type of liquid tissue which is present in our body, that is what, lymph. So students, till now we have discussed very important topics. ओके आज का जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से भरा हुआ था, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स. टिल देन, thank you students, we will meet in the next session.